I have killed 64 people, including my husband. Would you forgive a killer? A terrorist? What if they repent and surrender their arms? Is genuine change possible after such violence? Explore the intriguing and thrilling backstage action of many such conflict transformations in contemporary times, achieved by Sanjay Kumar under the guidance of Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. So now we can start Ruchira Devi. You all for a very special interaction with none other than the man who froze fire, Sanjay Kumar ji, whom we lovingly known as Sanjay Bihari ji. And Sanjay ji is an alumnus of St. Stephen's College, Delhi. After finishing his college, he dedicated himself to spread the message of spiritual nationalism, especially in the conflict-ridden zones of Bharat. Inspired by Sri Sri Ravi Shankar ji, he founded a number of organizations and laid foundation of several constructive initiatives for the spiritual renaissance of Bharat. He is one of the founders and chief patron of Jammu and Kashmir National People's Front. He is the managing and founder trustee of Sri Ram Rajya Foundation, a trust dedicated to promoting values of Ram Rajya. He is also the founder of Samarth Bihar, a platform dedicated to create Chanakya-inspired leadership in Bihar. He has been a faculty and facilitator of the Art of Living meditation programs for more than 25 years. He is a social reformer with significant ground level experience in conflict zones, having deep interest in public policy solutions for countering violence and extremism. We also have with us today Dr. Rajesh, who is the STC of Pune. Dr. Rajesh is a leading cardiologist. He has been there. Hello. Yeah, Dr. Rajesh Dopeshwarkar ji is a qualified interventional cardiologist and EP specialist with 20 years of experience. He has completed his doctorate of medicine in cardiology from AIIMS, New Delhi, and holds clinical fellowship at Toronto General Hospital, Canada. He is currently practicing as a consultant interventional cardiologist and an electrophysiologist at a top Pune-based hospital and runs his heart rhythm and heart failure clinic. He delivers lectures in local as well as national cardiology meetings and imparts trainings to other cardiologists in complex cardiac interventions. He is rated as top 3 cardiologist of Pune by 3bestrated.com, which is an independent and unbiased rating agency. He is associated with Art of Living since 20 years. He is a faculty and certified corporate trainer with the organization and conducts Art of Living courses in Pune. He is also the state teacher coordinator of Maharashtra. He has delivered talks on health and lifestyle disorders and managing stress in many industries around Pune. And he strongly believes in using breathing techniques to stay healthy and happy. To hand over to Dr. Rajesh and Sanjay for this.
Thank you so much, Ruchira Didi. Ruchira Didi herself is a teacher from Delhi, and you can realize how active she is. She just came to Pune and she has organized a DSN. तो हम सब लोग हिंदी में बात करेंगे. हम ये जो भी ग्रुप है ये सारे डिवोटीज का ग्रुप है, रुचिरा दीदी. तो यहाँ पे कोई इंट्रो टॉक नहीं है, कुछ नहीं है, सब अपने ही घर के लोग हैं. कई सारे टीचर्स हैं, कई टीचर कोऑर्डिनेटर्स हैं. और ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमें कि हम आपने संजय भैया का समय हमारे लिए लिया है. और कई सारे लोग बहुत उत्सुक है जानने के लिए संजय भैया को. उनका काम हम सब लोग जानते हैं और it is something which is very amazing. A life which is beyond our imagination is what is a life which Sanjay Bhaiya has lived. So like to welcome Sanjay Bhaiya. Sanjay Bhaiya है यहाँ पे? Yes, yes. अगर स्पॉटलाइट करेंगे संजय भैया को भी प्लीज. So really a very warm welcome Sanjay Bhaiya. We really are Thank you very much. very pleased कि आपको देख के ऐसे लगता है ना ये आप हमारे में से ही एक है. बिल्कुल आपके जैसे ही. हमारे में से ही एक है ऐसे लगता है. तो जो आपका जो प्रेजेंस है वो सबको ऐसे ही अपनाता है. तो शायद मुझे ऐसे लगता है वो टेररिस्ट है, मिलिटेंट है, उनको भी ऐसे ही लगा होगा कि ये हमारे में से ये इनका जो है बात वो सुनना चाहिए. So really a very big thank you for being with us. और संजय भैया का इतना महत्व है, मैं कहता हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग को हम जानते हैं, ऐसे जानते हैं कि कोर्सेस लेते हैं, सबको खुशी देते हैं, सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, तो है ही पूरी दुनिया में हम सिखाते हैं. तो वी आर वर्किंग मोस्टली इन द पीस जोन्स कि सब जो दुखी लोग हैं, शहर के लोग हैं, किसी को जैसे गुरुदेव कहते हैं ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम इसमें है, लेकिन आप उस जोन में काम कर चुके हैं जहां पे पीस का नाम लेना भी डरने ही जैसी बात है. तो बिग सैल्यूट टू यू फॉर लाइक हैविंग द करेज टू थिंक ऑफ पीस इन दैट प्लेस वेयर पीस का नाम लेंगे तो गोली से उड़ा देंगे. ऐसे इसमें है. एंड आई टेल यू कि मेरा पहले जो संजय भैया के काम से जो मुलाकात हुई वो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर है Rajneesh Juneja. He is no longer there, but he was a very kind-hearted person. And when he came to know कि I am associated with Art of Living, he felt very proud क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, आपके आर्ट ऑफ लिविंग के जो बिहार के संजय भैया है उन्होंने ऐसे काम किया है कि जो इमेजिन भी नहीं कर सकते माओइस्ट के जो काम किया है वो. और संजय भैया को मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे ये डिवोटीज है उनको आप थोड़ा सा उस समय के बारे में बताएं कि जब ये जो माओइस्ट थे, CPIM और माओइस्ट थे और बिहार में, क्योंकि आप बिहार से आते हैं तो नेचुरली आपको बिहार से दिल से कनेक्शन है, तो आप उस समय के बारे में बताइए कि क्या था बिहार में चल रहा था. एंड जस्ट लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी डिड इन बिहार. हाँ, देखिए बिहार के बारे में जब उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो जनरली मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया उस समय से, और एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनी कि ये कास्ट वार था. लेकिन इसको कास्ट वार कहने की नैरेटिव चाइना ने बनाया था. चाइना का जब 10th कांग्रेस हुआ था उस समय तब के चाइनीज लीडरशिप ने डिसाइड किया कि अगर सक्सेसफुली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपने यहाँ आगे बढ़ाना है चाइना में, तो इंडिया जैसा एक बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क जो है आने वाले समय में थ्रेट कर सकता है. क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड डिक्टेटरशिप दोनों एक साथ नहीं चल सकता. तो एक क्लियर कर दें कि वो कास्ट वार नहीं था, वो चाइना का सारा किया हुआ गेम था. एंड चाइना के उस समय जब डिसाइड हुआ तो बिहार और तब के अभी के बंगाल से कम 56 लोगों को चाइना ने ट्रेंड किया. उनके बच्चों को वर्ल्ड के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, उनको रिसोर्सेस दिया, फिर उनको कैसे बाकी लोगों को कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं वो सब कराया. एंड
एंड रिजल्ट दुनिया में पहली बार कोई एक 20 साल से चले आ रहा है स्ट्रक्चरल वायलेंस गुरुदेव के आशीर्वाद से, ग्रेस से 3-3.25 साल में कंप्लीट ठीक हो गया, जो मॉडर्न वर्ल्ड में अभी तक कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और देखिए, जब बिहार में वो प्रॉब्लम था तो उस समय कश्मीर में टेररिज्म था, पंजाब में मिलिटेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी था, और इन तीनों जगहों पे जितने लोग मारे जाते थे और मरते थे, उससे ज्यादा बिहार में 1 महीना में लोग मरते थे। तो इसको बड़ा सिंप्लीफाई करके लोग बताते हैं बिहार में कास्ट वार था। मैं आपके माध्यम से ये बात और कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं कि नहीं, चाइना वाज बिहाइंड दैट प्रॉब्लम, दैट स्ट्रक्चरल वायलेंस। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी देखिए, स्ट्रेस फ्री एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रेस फ्री एंड वायलेंस फ्री सोसाइटी आर्ट ऑफ लिविंग का मिशन स्टेटमेंट है। तो ये बात सही है कि जितने टीचर्स वर्कशॉप करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के डिफरेंट वर्कशॉप, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जब स्ट्रेस फ्री होता है तो वो वायलेंस को भी टैकल करता है या वायलेंस फ्री सोसाइटी बनाने में भी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन बाई एंड लार्ज इंडिया में चारों तरह का स्ट्रक्चरल वायलेंस है, टेररिज्म, मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, माओइज्म। मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी आगे आकर और इसको ठीक करना होगा, और बिहार में प्रॉब्लम कंप्लीट ठीक हो गया। तो भैया ने बहुत छोटे इसमें बोला है वो, लेकिन जिसको भी ये जानना है तो वो रियली उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भैया की एक किताब है। तो ईच वन ऑफ अस मस्ट परचेज दिस बुक, द मैन हु फ्रोज फायर, है ना। ये किताब ऐसे है कि आप एक बार उठा लोगे तो वो पूरी होने तक आप बंद नहीं कर सकते हो, ऐसी किताब है। एंड बी रियली एक्सपीरियंसिंग कि ऐसे हम कर सकते हैं, ये गुरुदेव की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है। गुरुदेव को आप जो भी आप संकल्पा लेते हो इस धरती के लिए, गुरुदेव वो पूरा करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इन किताब में दी है, वो सोच के ऐसे लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो संजय भाई, ऐसे कोई गुरु स्टोरी आप बताएंगे उस दौरान की जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल था लेकिन उससे बच के आप निकले? हाँ, पता नहीं, बुक तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन एक जो बड़ा डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आया था कि देयर इज वन वेरी फेमस रिवर कॉल्ड सोन रिवर, गंगा का ट्रिब्यूटरी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। एंड सोन रिवर के पास के जो फॉरेस्ट में मैं उस समय के माविस्ट लोगों के साथ पिछले 3-4 दिन से रह रहे थे, और सोन रिवर के एक साइड आज एक बिहार का अरवल डिस्ट्रिक्ट है, उस समय पुलिस डिस्ट्रिक्ट था, जहानाबाद था, और भोजपुर साइड में मैं था। और दोनों तरफ के पुलिस को पता चला कि यहाँ माविस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, जबकि माविस्ट कुछ डिस्ट्रक्टिव प्लान नहीं कर रहे थे, वो मेरे साथ प्लान कर रहे थे कि कैसे कंस्ट्रक्टिवली अब इस वायलेंस को समाप्त किया जाए। सो आई रिमेम्बर किस तरह से दोनों तरफ की पुलिस ने फायरिंग करना शुरू किया, एंड वी आर इन द मिडिल ऑफ द सोन रिवर इन ए बोट, और 3 लोग बुरी तरह से पुलिस की गोली से घायल हो गए। एंड जितने लोग थे उनका पहली प्रायोरिटी ये थी कि वो लोग मुझे बचाना चाहते थे। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड मैं आपको कैसे बताऊं कि किस तरह से मैं सेव्ड हुआ, और फिर वहां से जो एक जर्नी शुरू हुई है। आई डोंट थिंक ये बुक में है कि नहीं, ये बात नहीं है, नहीं है ना? हाँ। ये तो पूरा नया ये है। हाँ। तो क्या कहते हैं, इट्स लाइक यू आर नॉट फ्रीजिंग फायर, यू आर प्लेइंग विद फायर। पूरा आग के साथ आप खेल रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। आप जो भी आपकी स्टोरी है वो कोई क्या कहते हैं पूरा पागल आदमी कर सकता है, या जो गुरुदेव के आदेश के अलावा और कोई जानता नहीं वही कर सकता है ये। तो दिस इज लिटरली समथिंग व्हिच इज अनबिलीवेबल। तो जो भी हम कर रहे हैं, ऑल द एफर्ट्स, मुझे कभी कभी ये इस चीज से ये होता है कि हमारे देश के कितने शत्रु होंगे और उनको बचाने की स्ट्रेंथ जो है वो ईश्वर के अवतरण के बिना पॉसिबल ही नहीं है। कि नहीं तो ये देश तो कहीं पे तोड़ने के लिए
बैठे चारों बाजू से तोड़ने के लिए बैठे हैं। और पिछले कुछ 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से चीजें दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, उसमें संजय भैया का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपने बोला ना 4 तरह के स्ट्रक्चरल वायलेंस है, उसके बारे में आप थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे भैया कि जो आप कह रहे स्ट्रक्चरल वायलेंस है, क्योंकि हम लोग जो है वो उसके डिटेल्स और इसके बारे में थोड़ा जानते नहीं है, तो किस तरह से है और ये बाहर से लोग कैसे प्लानिंग करते होंगे एंड ऑल डिफरेंट थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। जनरली जब हम वायलेंस की बात करते हैं डोमेस्टिक एंड स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चरल वायलेंस की जब हम बात करते हैं तो कई बार खिचड़ी कर देते हैं, टेररिज्म को मिलिटेंसी बोल देते हैं, मिलिटेंसी को इंसर्जेंसी बोल देते हैं। पर जो स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब ही है जिसका एक सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स हो, तब वो स्ट्रक्चरल हुआ। फाइट करने वाले लोग, मरने मारने वाले लोग आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जनरली उसके पीछे की सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स को हम नहीं समझते। और वही अंडरस्टैंडिंग आर्ट ऑफ लिविंग ने डेवलप की है कि कैसे उनके सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स को डील किया जाए ताकि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वायलेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। तो कश्मीर में जनरली मीडिया ने बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस से एक नैरेटिव बनाई कि कश्मीर में मिलिटेंसी है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है जिसने कहा कि नहीं, कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं, कश्मीर में टेररिज्म। और पंजाब में मीडिया ने नैरेटिव बनाई टेररिज्म है, तो पंजाब में मिलिटेंसी था। तो टेरर का एक इज्म, और जो इज्म है उसकी जो मैनुअल है वो कोई ना किसी फॉर्म में लिखी हुई है। उस मैनुअल को फॉलो करते हुए जो लोग इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो टेररिज्म है। मैं बहुत एलाबोरेट करके नहीं बात करूंगा, लेकिन ये है जनरली एक कम्युनिटी के लोग हैं, बोलते हैं हम आपके पास नहीं रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे, हमारे आप में फंडामेंटल डिफरेंसेस है और वो डिफरेंसेस के कारण हम आपसे फाइट करेंगे। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ है, ये एक मैनुअल जैसा है, चीजें एक इज्म है। तो टेरर का जो इज्म है, तो कश्मीर में टेररिज्म है, पंजाब में मिलिटेंसी था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी मतलब एक स्लो वार। हम आपसे डायरेक्ट वार तो नहीं फाइट कर सकते, लेकिन हम धीरे धीरे करके आपको अंदर से कमजोर करना चाहते। तो जो स्लो वार है किसी कंट्री के खिलाफ एक पर्टिकुलर रीजन में, उसको इंसर्जेंसी कहते हैं। एंड माओ, मार्क्स एंड लेनिन के विजन एंड आइडियोलॉजी पे बेस्ड जो वायलेंस है उसको माओइज्म कहते हैं। तो हम वायलेंस आप तो टेररिज्म जो है वो किसी धर्म से लेके है, ऐसे कुछ नहीं है? बिल्कुल मजहबी है। अच्छा। 100%। और मिलिटेंसी जो है वो किसी प्रिंसिपल के बेसिस पे कि किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे मिलिटेंसी आमतौर पे वहां ज्यादा शुरू हुआ है या होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने देश में, जहां लोग अपने लैंग्वेज को लेकर एक सब नेशनलिटी डेवलप कर दी है। उन लोगों ने एक स्पेस बनाया है वैसे लोगों के लिए जिनका इस देश से, इस मिट्टी से कोई प्यार नहीं है। मास्टर तारा सिंह 1920 में अगर पंजाबी लैंग्वेज के नाम पे पंजाबी सूबा की डिमांड नहीं करते, तो इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो कांग्रेस सिख राइट हुआ, उस राइट का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव पड़ा। उसी तरह से तमिल लैंग्वेज को लेके, मलयालम को लेके जो एक, या साउथ इंडिया में जो एक स्टेट अलग लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बना, तो एक सब नेशनलिटी क्रिएट की गई। और जो पंजाब के लोग हैं उनको टेररिस्ट कहा गया, वो टेररिज्म नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा बल का प्रयोग किसी एक सोसाइटी यानी एक डेमोग्राफिक इसके करेंगे तो वे लोग उसको उससे निपटेंगे और वो उसको फिर मिलिटेंसी कहेंगे, टेररिज्म नहीं कहेंगे। तो जस्ट सब लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, संजय भैया
काफी ज्यादा इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में भी रख चुके हैं, और उसी की वजह से उनका ये सारा जो नॉलेज है अबाउट थिंग्स, इट हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट. आई वुड लाइक टू ऑल्सो वेलकम बलविंदर जी, क्योंकि पंजाब की बात आई है और बलविंदर भैया अभी यहाँ पे है. बलविंदर सब लोग भैया. जानते ही है बलविंदर भैया को. बलविंदर भैया, वेलकम सो जय मच. गुरुदेव. जय गुरुदेव संजय भाई, जय गुरुदेव. बहुत टाइम के बाद में आप मिले हैं। हाँ हाँ हाँ. नीलम मिलती रहती है आश्रम में, मैं जब भी पूछता हूँ कहते हैं कि मिशन पे हैं। अच्छा. तो आप मिशन मोड से कब बाहर निकलते हैं बताइए। तो अभी इसी फोरम पे मैं आपको देता हूँ न्योता, आप पुणे में हैं तो जरूर घर पे आइए। नहीं, मैं बताइए दिल्ली वैसे में आप। हूँ. अच्छा आज ही जम्मू कश्मीर से आया हूँ दिल्ली. अच्छा। तो ऑनलाइन कनेक्टेड है एक दूसरे से. जय गुरुदेव मीनाक्षी दीदी. वो हाँ. जय गुरुदेव भैया. मेरा एक प्रश्न है संजय भाई हाँ. कि एक तो रीजन है सोशियो इकोनॉमिक और एक तीसरा रीजन है स्टेट का। तो हाउ स्ट्रांगली और हाउ वीक हैज बीन द स्टेट apparatus to encourage this kind of militancy and Maoism? तो स्टेट का क्या रोल होना चाहिए और कहाँ उसकी कमियां हैं, कहाँ उसका स्ट्रेंथ? देखिए, एक तो पहले हम तो आप सब पब्लिक लोगों फोरम को. में बता सकते हैं तो? हाँ, अगर आप इसको पब्लिक फोरम में बता सकते हैं नहीं तो मैं बताऊंगा. मैं सब चीज तो नहीं, लेकिन कुछ हाँ, बातें, ये कुछ क्लैरिटी जरूर आप लोगों से ये करेंगे. कि पहली बात तो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक रीजन कभी भी स्ट्रक्चरल वायलेंस के लिए न था न भी है. तो जनरली हम जब कहीं वायलेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है, तो आमतौर पे पॉलिसी मेकर्स की स्टेटमेंट सुनते हैं कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ गरीबी है, यहाँ नहीं इस तरह से चीजें डेवलप की गई हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका उन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं. न जो लोग वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको इन सब चीजों से कुछ लेना देना. आमतौर पे आप देखेंगे जो लोग स्ट्रक्चरल वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो डेवलपमेंट के सिंबल्स हैं, पहले उसी को वे डिस्ट्रॉय करते हैं. स्कूल बिल्डिंग को, टेलीफोन को, रेलवे ट्रैक को, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है जो हमारे डेवलपमेंट के साइन हैं, उनको वो लोग डिस्ट्रॉय करते. इसका मतलब कि वे लोग भी डेवलपमेंट नहीं चाहते. जहां तक बात है गवर्नमेंट की, तो दो बातें मुझे, अब एक बात काफी ज्यादा माइन्यूटली मैं देख रहा हूं कि मुझे समझ में आने लगी और मैं इसको इम्प्लीमेंट होते देख रहा हूं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने कहा कि इंडिया विल बी द वेलफेयर स्टेट. मतलब इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर के लिए काम कर. लेकिन पर्टिकुलरली पिछले कुछ 35-40 वर्षों से, एंड मोर प्रिसाइसली पोस्ट मंडल इरा में जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स शुरू हुई है, खासकर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स में, वो सब कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, रीजन एंड लैंग्वेज के बेसिस पे हो रहा है. जब लीडर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट का लीडर रहेगा, एक पर्टिकुलर रीजन का लीडर रहेगा, तो वो किसी भी पोजीशन पे जब आप उसको रखेंगे तो वो उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कभी सोच नहीं पाएगा, और जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो डेड हो जाता है उसी से. और मुझे लगता नहीं कि आज भी देश में कुछ इस तरह की बात है. आज भी हम चाहे चाणक्य नीति कह लें, कुछ भी कह लें, एंड ऑफ द डे वोट एंड टिकट का सिलेक्शन सभी पार्टी अपने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, इन्हीं सब क्वालिफिकेशन को देखकर करती है. और जब क्वालिफिकेशन ये सब होगा तो नेचुरली ये क्वालिफिकेशन जो रास्ता बनाता है या जो फूड तैयार करता है वो स्ट्रक्चरल वायलेंस के लिए ही करता है. इससे स्कोप मिलता है स्ट्रक्चरल वायलेंस के लिए. मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन गढ़चिरौली के बारे में आज से 8-9 साल पहले किसी बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सन से बातचीत हुई थी.
लेकिन बात वहीं चिरौली की बात वहीं आके रह गई कि नहीं, इसको हम नहीं कर सकते। तो बलिंदर भैया ठीक है। स्टेट, हाँ एकदम, तो इसका मतलब है स्टेट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। नहीं, लेकिन एक दूसरी बात भी है जो मैं बात करते करते वो लाइन नहीं कहा। जी, देखिए, सीधी सी बात है, हम जैसा होते हैं वैसा ही नेता, वैसा ही व्यवस्था हमको मिलता है। ये भी सही है, राइट। और ये जो लिंग्विस्टिक हिसाब से या कहते हैं कि रीजन के हिसाब से जो हुआ, इट स्टार्टेड जस्ट